So we are going to start today microbial physiology second unit. So once we complete the second unit, then one chapter of microbial physiology will be completed. But don't worry, amino acid lecture as it is coming today evening again it will come. But now we are going to see nutrient uptake and transport to try to understand it and memorize it in the class itself. Okay. The first step in nutrient use is their uptake by the microbial cell. So first step in nutrient use is to take it by the microbial cell. Uptake mechanism must be specific. That is, the necessary substances must be acquired, not the others. So what do you understand by this step? The first step in nutrient use is their uptake by the microbial cell. So uptake by the microbial cell means it will take it. Okay. So the first step of nutrient use is the uptake by the microbial cell. Means uptake means the action of taking up, right? So first it will take the before using the nutrient, the first step is to take the nutrient by the microbial cell. Uptake mechanism must be specific, and this uptake mechanism will be specific means that it is necessary substances must be acquired, not the others. So the necessary substances, the needed substances only should be taken, uptaken, and not the other substance. Okay. But the plasma membrane is an effective barrier to leakage. But what is the thing? The plasma membrane is an effective barrier to leakage. Neither leak into or out of the cell solutes, neither go leak into nor out of the living cell, neither it goes or comes. Yet they must allow movement of nutrients into the cell. But it must allow the movement of nutrients into the cell. If a microbe does not obtain nutrient from its environment, and if a microbe is not obtaining nutrients from its environment, if a microbe is not taking nutrients from its environment, it will quickly exhaust. And if the microbe is not taking nutrients from the environment, अगर वो environment से nutrients नहीं ले रहा है, वो बहुत जल्दी मर जाएगा. If you don't take food, you will die very soon. Nucleotides and other molecules as well as energy for growth. So if it does not take amino acid, nucleotides and other molecules as well as energy for growth, so if it will not take amino acid, nucleotides and other molecules needed energy for growth, survive and reproduction. So if it does not take amino acid, nucleotide, other molecule, energy for growth, survive and reproduction, they will die soon, right? So this is the basic idea about nutrient uptake. That first point is, the before utilizing the nutrient, they need to uptake the nutrient for the by the microbial cell. Uptake mechanism must be specific, that is, necessary substance should be acquired and not the others. But our plasma membrane is effective barrier to leakage, neither leak nor solutes go out of the living cell, yet they must allow the movement of the nutrient into the cell, and they must allow the movement of the nutrient. If a microbe does not obtain nutrients from its environment, then it will die soon. And what are the nutrients? Amino acid, nucleotides, energy, other molecules. Okay. Some common features of nutrient uptake by bacteria are, what are the some common features? So now let's look into the features. सबको समझ में आ रहा है? प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दो अगर समझ में आ रहा है तो. Okay. Some common features of nutrient uptake by bacteria are, bacteria can only take nutrient as dissolved molecules. So bacteria कभी भी solid में नहीं ले सकता. ये है feature number 1. कैन ओनली टेक न्यूट्रिएंट एज डिजॉल्व मॉलिक्यूल. वो सिर्फ न्यूट्रिएंट को कैसे लेता है? डिजॉल्व मॉलिक्यूल, मतलब वाटर में घुला हुआ फॉर्म में. अपटेक मेकानिज्म इज स्पेसिफिक, दैट इज नेसेसरी सब्सटेंस मस्ट बी एक्वायर्ड नॉट द अदर. तो यहाँ पे मैं बोली कि वही एक फीचर है कि अपटेक मेकानिज्म क्या है? स्पेसिफिक. नेसेसरी सब्सटेंसेस मस्ट बी एक्वायर्ड नॉट द अदर्स. ओके, ये 2 पॉइंट हो गए. बैक्टीरिया आर एबल टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल इवन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स inside the bacterial cell is higher than outside environment. तो बैक्टीरिया तभी भी ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर सकता है जब उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हाई है देन द आउटसाइड एनवायरनमेंट. समझ में आया? लाइक एक बैक्टीरिया है तो इसके अंदर सपोज 150 है, ठीक है, और
बाहर सपोज 50 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये तब भी न्यूट्रिएंट्स एक्वायर कर सकते हैं, एबल टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल इवन व्हेन द concentration of nutrients even when the concentration of nutrients inside the bacterial cell is higher than the outside environment. और यहाँ पे अगर ज़्यादा भी है तब भी वो nutrients लेगा. They are able to move nutrients against the concentration gradient. So they are able to move the nutrients against the concentration gradient. What is concentration gradient? So what is the concentration gradient? That difference in concentration of substances between two areas. So यहाँ पे 50 है concentration, वहाँ पे 150 है. So it कहा क्या लाइन, हाँ, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये जा सकता है, ठीक है. और दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बैक्टीरिया ऑफन लिव इन न्यूट्रिशन पुअर हैबिटेट. और ये क्यों करते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया को ऑफन न्यूट्रिएंट पुअर हैबिटेट में रहना पड़ता है, तो वो ज़्यादा लेकर रखते हैं, ठीक है. टू डू दिस सेवरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिसाइड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो यूज सेवरल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. तो क्या होता है? टू डू दिस सेवरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंड अलाउ यूज सेवरल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. सो इसके लिए, इस काम के लिए सेवरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और कोई भी यूज़ करते हैं. पहला वाला है पैसिव डिफ्यूजन, इसे हम लोग सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं, पैसिव और सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है. फिर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नॉट फैसिलिटेटेड. ये बहुत स्टूडेंट गलत लिखते हैं. इट इज़ फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड. फिर आ जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी है. और लास्ट वाला है ग्रुप ट्रांसलोकेशन. आज हम लोग ये दो देखने का कोशिश करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये दो देखेंगे, ठीक है. पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है? पैसिव डिफ्यूजन इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन और डिफ्यूजन से कहते हैं. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो ये कैसे जाता है? हाई थे लो, ठीक है. इट मूव्स फ्रॉम द रीजन, process by which molecules move from a region of higher concentration to the region of lower concentration. That is, molecule move down the concentration gradient. So molecule कैसे move करता है? Down the concentration gradient, ठीक है. The rate of passive diffusion depends on. तो ये पहले देख लो, यहाँ तक मैं explain करती हूँ पहले अच्छे से. The concentration of the region of lower concentration. So हाई से लो तक मूव करते हैं, ठीक है. मॉलिक्यूल मूव डाउन दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का डाउन मूव कर रहा है. अगर तुम एक सीढ़ी में चढ़ रहे हो, यू नीड एनर्जी, राइट. व्हेन यू आर कमिंग डाउन फ्रॉम अ स्लाइड, यू नीड लेस एनर्जी, राइट. तो यहाँ पे एनर्जी नहीं लगता है, इट मूव्स डाउन दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है. अब ये है द रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन. नंबर 1, हाइड्रोफोबिसिटी. हाइड्रोफोबिसिटी क्या है? पैसिव डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन होता है जो हाई से लो तक मूव करते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मूव डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है. तो क्या क्या फैक्टर में डिफरेंट करते हैं? पहला है हाइड्रोफोबिसिटी. हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल डिफ्यूज रैपिडली. हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो होता है वो डिफ्यूज रैपिडली, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है. हाइड्रोफोबिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है? जब लिपिड्स हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक नेचर होता है. तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोफोबिक इनसाइड में है तो बाइंड बहुत अच्छे से करेंगे, तो इसलिए हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होगा रैपिडली, ठीक है. Density of diffusing substance. The rate of diffusion is inversely proportional to the square root of density of diffusing substances. So larger the molecule, slower will be the rate of diffusion. This is called Graham's law of diffusion. तो क्या होता है कि डेंसिटी, मतलब जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा स्लोअर होगा उसका डिफ्यूजन, बट जितना कम होगा तो बहुत जल्दी डिफ्यूज़ होगा. तो इसलिए डेंसिटी डिफ्यूजन के रेट में, मतलब डिफ्यूजन और डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. और इसे जो ये वाला है इसे हम लोग ग्राहम्स लॉ कहते हैं, ठीक है. ये वाला पेज समझ में आया? फॉर दिस नोट्स जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर 7980458983 और तुमको फ्री में नोट्स मिल जाएगा, ओके. नेक्स्ट वाला पॉइंट है हम लोग का साइज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ये राइट अप तुमको वैसे नहीं समझ में आएगा जब तक मैं तुमको ड्रॉ करके ना समझाऊँ, ठीक है. चलो, 2 सेल है सपोज, तो इसमें तुम पकड़ लो
50 है, ठीक है, और इसमें सपोज तुम लो 100 है, ठीक है, और बाहर सपोज 150 है, ठीक है, और इधर बाहर सपोज 150 है, ठीक है, तो कौन सा में ज़्यादा जाएगा न्यूट्रिएंट और पहले जाएगा? बोलो देखिए, इसका डिफरेंस करो पहले, कितना है 100, इसका डिफरेंस करो पहले, कितना है 50, तो कौन सा में ज़्यादा जाएगा? इसमें ज़्यादा जाएगा। तो क्या हुआ साइज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? तो ये वाला है ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा साइज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा मतलब डिफरेंस होगा दोनों कॉन्सेंट्रेशन में, बाहर और अंदर, वो उसमें पहले जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब पढ़ के देखो, चलो। साइज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन सेल्स एक्सटीरियर and its interior. A large concentration gradient is required for adequate nutrient uptake by passive diffusion. So, large concentration gradient is required for adequate nutrient uptake by the passive diffusion. That is, cell's exterior nutrient concentration must be high while the internal concentration is low. Unless the nutrient is used immediately upon entry, the rate of diffusion decreases as more nutrient accumulates in the cell. So unless nutrient immediately नहीं होता है upon entry, तो क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीजेस एज मोर न्यूट्रिएंट्स गेट एक्यूमुलेटेड। तो फटाफट न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करना है। अगर स्लो हो जाएगा तो डिफ्यूजन भी स्लो हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं। समझ में आया? कौन कौन सा में होता है सिंपल डिफ्यूजन व पैसिव डिफ्यूजन? स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स सच एज, स्मॉलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स में होता है सच एज O2 CO2 गैसेस इजीली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली क्रॉस कर देता है पैसिव डिफ्यूजन में। क्या क्या? स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जैसे O2 CO2 गैसेस। स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल सच एज वाटर ग्लिसरॉल कैन पास द मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, ये दो पास कर सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन CO2 अदर गैसेस, और स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज H2O glycerol can pass across the membrane by passive diffusion. However, most of the substances cannot freely diffuse into a cell. और larger molecule polar substances ion ये must enter the cell by other mechanism. ये सब जा नहीं सक रहे हैं तो ये अदर मेकानिज्म से जाएगा। तो सेकेंड वाला मेकानिज्म शुरू होता है जो कि है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। मैं इस क्लास में नहीं करा रही हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि ये ऑलरेडी 12 मिनट का हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में जाते हैं फैसिलिटेड करने, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है फैसिलिटेड, फिर आ जाएंगे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ग्रुप ट्रांसलोकेशन। ओके, थैंक यू। आई होप सो तुम लोगों को समझ में आया यहाँ तक। अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब सी यू सेवर, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि नया वीडियो आते ही तुमको पता लग जाए। एंड जस्ट चेक ऑल माई प्ले लिस्ट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सेम 3, क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि February 23 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जा रहा है। थैंक यू और हैव अ नाइस डे। कमेंट लिखना नहीं भूलना, और फ्री नोट्स चाहिए तो 79 वाला नंबर नीचे दिया रहेगा। चलो ठीक है, चलो टाटा।